Ignited Minds Tutorials recently released an informative video titled Cell, the Fundamental Unit of Life for Class 9 CBSE Science Biology. This video is a comprehensive explanation of the topic, providing valuable knowledge for students. In this video, the concept of the cell as the basic unit of life is explored. The video covers various aspects of a cell, including its structure, functions, and importance. Students will learn about the different types of cells, such as animal and plant cells, and their unique characteristics. The video delves into the intricate details of cell organelles, highlighting their specific functions within the cell. Topics like the nucleus, mitochondria, ribosomes, and cell membrane are covered, giving students an in-depth understanding of cellular processes. Furthermore, the video emphasizes the significance of cells in maintaining life processes. It discusses the role of cells in growth, reproduction, and performing vital functions in our bodies. Students will gather valuable insights into how cells contribute to the overall functioning of living organisms. Overall, the video by Ignited Minds Tutorials serves as a knowledge-packed resource for Class 9 CBSE Science students. Its engaging and informative content provides a clear understanding of the topic. Cell, the fundamental unit of life and its relevance in the study of biology. मैंने गलत टाइमिंग भेजा था खैर ओके सो पीपल वी विल बी स्टार्टिंग इन 9th स्टैंडर्ड विद सेल्स ठीक है व्हाट आर सेल्स बच्चा पार्टी सेल्स होता क्या है तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आपने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है सेल इज बेसिकली व्हाट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट अभी ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मतलब होता क्या है व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन पीपल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मतलब होता क्या है बोला बोला अरे जल्दी से बोला एक मिनट हाँ अगर ऐसा कर दिया तो चलो कोई दिक्कत नहीं सो व्हाट डू वी मीन बाय द सेल बीइंग अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मतलब आपका जो सबसे छोटा यूनिट है ठीक है जैसे एक बिल्डिंग का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है ब्रिक तो वैसे ही हमारे बॉडी का सबसे छोटा अनडिवाइडेड यूनिट क्या है सेल है ठीक है सो सेल इज बेसिकली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट अभी जैसे देखो यहाँ पे टावर है देयर इज अ टावर दैट वी हैव सो टावर में आपका सबसे छोटा यूनिट क्या होगा ब्रिक्स ठीक है दिस विल बी बेसिकली ब्रिक्स ओके चलो बच्चा पार्टी जैसे आपका कोई मॉन्यूमेंट है इसमें आपका सबसे छोटा यूनिट क्या होगा अगेन ब्रिक्स ठीक है ओके जैसे आपका समझ लो कोई बिल्डिंग है इसमें भी आपका सबसे छोटा यूनिट क्या हो जाएगा ब्रिक्स ठीक है सो when it comes to structure in all these structures what we observe is that the smallest unit is basically a brick और यही brick आपका structure और functional दोनों भी हो जाएगा ठीक है it provides solidarity and it is basically आपका structure भी define कर रहा है ठीक है they look very different from each other हालांकि अगर आप देखोगे observe the following structures you will see that they look very different from each other इसी तरह से हमारे जितने भी organisms हैं वो सब एक दूसरे से एकदम अलग दिखते हैं they all seem to be different but they are all made up of one fundamental unit which is basically cells all these animals are made up of one fundamental unit that is cells ठीक है they look very different from each other ठीक है they differ in shape and size अगर आप देखोगे यहाँ पे all their sizes and shapes are different they differ in shape and size but they do have anything in common what is it bricks the only thing that they have in common is basically bricks are we clear on this one people okay and this is the reason so they are all made up of bricks okay they are all made up of bricks and all these bricks will have a common shape so इसी तरह से हमारे जितने भी organisms हैं they are different in shape and size however they are made up of one common unit which is basically known as the cell ठीक है ये आपका सेल हो जाएगा ब्रिक्स आर क्या हो जाएंगे ब्रिक्स आर व्हाट बच्चा पार्टी ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ठीक है सो ब्रिक्स आर व्हाट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ठीक है ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ब्रिक्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ठीक है ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स तो इसी तरह से भाई साहब हमारे बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हो जाएंगे सो देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे डिफरेंट है देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है
So there are millions of living beings on this earth. They have different sizes, they have different colors, they have different shapes, but all of them are made up of one simple thing, and that is known as cells. Okay? So they all differ in size and shape, but they are all made up of same building blocks. एक ही building block से ये सब बने हुए हैं, and that is basically cell. Sorry, आज मेरी तरफ से गलती हो गई है टाइमिंग्स का. ठीक है? Okay. So these building blocks are known as cells. Just as buildings में आपके building blocks होते हैं, which are basically what the bricks. इसी तरह से आपके बॉडी में जो मतलब आपके जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी में क्या होते हैं भाई साहब? सेल्स. These are known as cells. So building blocks of life, these are building blocks of life. ठीक है? So how do we define a cell? एक सेल को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? सेल इज द कॉमन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. ठीक है? कॉमन है, बेसिक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. ठीक है? मतलब इससे बॉडी में स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों भी डिफाइन होता है. ठीक है? मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब का एक स्ट्रक्चर होगा. ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है, हार्ट का एक स्ट्रक्चर है, किडनीज का एक स्ट्रक्चर है, स्किन सेल्स के एक स्ट्रक्चर है, बोन्स का एक स्ट्रक्चर है, और सबका अलग अलग फंक्शंस भी होगा. ठीक है? फॉर एग्जांपल, हार्ट हैज द फंक्शन ऑफ पंपिंग ब्लड ऑल ओवर द बॉडी. ब्रेन हैज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एज इट्स फंक्शन. बोन प्रोवाइड शेप एंड सॉलिडिटी टू द बॉडी. सो ये सारे आपके अलग अलग फंक्शन है, लेकिन सेल जो होगा वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा. ठीक है? यहां से शुरुआत होती है. ठीक है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. दिस बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. ओके, डिस्कवरी ऑफ सेल्स. तो डिस्कवरी ऑफ सेल्स में अगर आप देखोगे कभी हुआ था ये इन 1665. there was a person whose name was, or rather the scientist name was Robert Hooke. ठीक है? he was the one who basically, इन्होंने कॉक सेल्स ऑब्जर्व द साइंस. देखो आपने कॉक सेल्स अगर की बात करोगे तो ऐसे बॉटल्स होते हैं. देखो आज की तारीख में तो प्लास्टिक बॉटल्स आते हैं, लेकिन उस टाइम पे कांच के बॉटल्स होते थे, और इन कांच के बॉटल्स में ऐसे एक एक स्टॉपर होता था. तो इसी को अपन बोलते हैं कॉक. ठीक है? इट इज एक्चुअली मेड फ्रॉम ट्री का जो बार्क होता है उससे बनाया जाता है ये. ठीक है? सो ही ऑब्जर्व द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक. ठीक है? एंड दैट इज बेसिकली बार्क ऑफ अ ट्री. ठीक है? ये आपका बार्क ऑफ अ ट्री है. बेसिकली एक बार्क ऑफ अ ट्री से इन्होंने इसको पुल अप किया, और इन्होंने एक सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप. उस टाइम पे भाई साहब माइक्रोस्कोप की ऐसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी. ठीक है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, सिंपल उन्होंने खुद से ही डिजाइन किया था ये माइक्रोस्कोप, और इस माइक्रोस्कोप के अंदर में उन्होंने ऑब्जर्व किया. ठीक है? he started observing these cells which are basically what? Cork cells. ठीक है? these are cork cells, and he started observing them under the microscope. So what did he see people? He saw that these are empty chambers. ये ऐसे chambers बने हुए हैं. ठीक है? ये ऐसे chambers बने हुए हैं. ठीक है? So ये आपके cork cells हो गए. These were basically known as cork cells. Are we clear on this one people? ठीक है? So देखो जैसे जेल में होता है ना, जेल में सेल जो है वो आप बहुत सारे जगहों पे यूज करते हैं. CELL सेल आप बॉडी के अंदर जो है उसको भी सेल बोलते हो, और जो रूम्स होते हैं छोटे छोटे रूम्स, जेल में जो छोटे छोटे रूम्स होते हैं उनको भी अपन सेल बोलते हैं, और सेल फोन तो आप बोलते ही हैं. तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज होता है. लेकिन अगर आप किसी जेल में जाते हो तो जेल में जो छोटे छोटे कमरे होते हैं जिनमें कैदियों को रखा जाता है, दैट इज बेसिकली नोन एज सेल. सो ऑल दीज स्मॉल यूनिट्स इन विच बेसिकली प्रिजनर्स are staying, they are known as cells. ठीक है? So in the same way he observed that these were basically cells. ठीक है? So these are cells. They are empty compartments which resembled structure of a honeycomb. honeycomb अगर आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा रहेगा. ठीक है? मधुमक्खी का छत्ता ज़्यादा पास से तो देख नहीं सकते, लेकिन अगर आपने किसी वो जो मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खी ये निकालते हैं ना, हनी निकालते हैं, उन लोगों के हाथ में रहता है कभी कभी, आप देखोगे इस तरह के कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं. These are basically compartments which are there. ठीक है? So इस तरीके का सेल उन्होंने देखा. He labeled them as cells. इन्होंने भाई साहब इनका क्या नाम दिया? cells. और तभी से नाम चला आ रहा है cells. ठीक है? In Latin मतलब लैंग्वेज होता है. cells means small rooms. छोटे छोटे रूम्स को अपन cells बोलते हैं. जैसे आपके किसी भी प्रिजन में जो छोटे छोटे रूम्स होते हैं उसको cells बोलते हैं. So इसके लिए इसका नाम पड़ गया भाई साहब cells. ठीक है? That's how it was named as cells. ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखिए आपके दो टाइप के होते हैं. अभी हम सेल्स की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज व्हाट? यूनिसेल्युलर, एंड द अदर वन इज मल्टीसेल्युलर. नाउ यूनि मींस व्हाट? वन, एंड मल्टी मींस व्हाट? मोर देन वन.
ठीक है. सो ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल आर नोन एज यूनिसेल्युलर and organisms which are made up of more than one cell are known as multicellular. Now what are these unicellular organisms people? अमीबा, पैरामोशियम, ठीक है. ऐसे बहुत सारे आपके बैक्टीरिया जो हैं वो यूनिसेल्युलर हैं. हाइड्रावी, तो ये सारे आपके जितने हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल से बने हुए हैं, तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, यूनिसेल्युलर. हम हो गए, हाँ ईस्ट भी हो सकता है, ठीक है. जितने आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं वो सब के सब यूनिसेल्युलर होंगे, ठीक है, जनरली. ओके, सो यूनिसेल्युलर दे आर मेड अप ऑफ वन सिंगल सेल, मल्टीसेल्युलर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय अ सिंगल सेल. तो जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सारे फंक्शन जो है वो एक सिंगल सेल कैरी आउट करता है, ठीक है. Multicellular, many cells group together in a single body and assume different functions to form various body parts, ठीक है. तो बहुत सारे सेल्स जब एक साथ जुड़ जाते हैं, many cells group together in a single body and assume different functions in it to perform various body. जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव सेल्स हैं, हमारे अंदर ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, हमारे अंदर कंट्रोल एंड नर्व सेल्स हैं, ठीक है. इसे ऐसे तमाम सेल्स हैं और इन सब सेल्स का लोकेशन अलग है, साइज एंड शेप अलग है और फंक्शन भी अलग है, ठीक है. सो जितना आपका ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाता है उतना ही भाई साहब सेल का डायमेंशन भी बढ़ता जाता है, ठीक है. सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ये सारे बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे, ठीक है. ओके, जैसे शैल्मिडोमोनास हो गया आपका, दिस इज बेसिकली शैल्मिडोमोनास, ठीक है. पैरामोशियम हो गया आपका, पैरामोशियम. देन वी हैव, ठीक है, अमोइबा. ओके, ये सारे आपके देखोगे अगर, दीज आर ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, सेल थियरी, डिफरेंट साइंटिस्ट प्रपोज डिफरेंट थियरीज रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ सेल्स. अलग अलग लोगों ने भाई साहब अलग अलग थियरीज प्रपोज की हैं सेल के स्टडी में, ठीक है. सो इट स्टेट्स दैट, तो सेल थियरी है क्या, ठीक है. तो सेल थियरी अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सेल थियरीज प्रपोज की हैं. व्हेन यू गो ऑन हायर क्लासेस यू विल स्टडी दिस, ठीक है. बट फॉर द टाइम बीइंग आपको कंफ्यूज करने का पर्पस नहीं है. तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो सारे साइंटिस्ट ने इस चीज पे तो जरूर अग्री किया है कि जितने भी आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स. सो सेल इज व्हाट, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, ठीक है. क्योंकि आपके लिविंग बींग्स सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं तो ये आपके बेसिक यूनिट हो जाएगा लाइफ का, ठीक है. जैसे आप देखोगे प्लांट टिश्यूज ये अलग अलग भाई साहब आपके सेल्स से बने हुए हैं, ये आपके अलग अलग एनिमल सेल्स हैं. सो वी हैव डिफरेंट प्लांट टिश्यूज which are made up of different plant cells and we have different animal tissues which are made up of different animal cells, ठीक है. Okay, in 1885 Virchow modified the cell theory suggesting that all cells arise from pre-existing cells. तो जितने भी आपके सेल्स हैं वो आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं. मतलब कैसा है, देखो ये एक सेल है, ये बेसिकली ऐसा डिवाइड होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा एंड फाइनली इट विल डिवाइड इनटू टू, ठीक है. सो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. विद द डिस्कवरी, तो आपके जितने भी सेल्स पहले थे, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया गया था सेल्स को देखने के लिए वो बहुत ही साधारण सा इंस्ट्रूमेंट था और उसमें हम सेल्स को ज्यादा देख नहीं पाए. विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो अभी आया गया क्या आपका भाई साहब, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये पावरफुल माइक्रोस्कोप था. इन 1940 it was easy to understand the complex structure of a cell. So it was easy to understand the complex structure of a cell, ठीक है. ओके, सो आपने देखो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे आप सेल्स को रखते हैं एंड यू कैन इजीली सी द सेल शेप एंड साइज लाइक दिस. अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक पावरफुल माइक्रोस्कोप है और एक छोटी चीज को बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड में वो मैग्नीफाई करता है, ठीक है. ओके, सो दैट बेसिकली फिनिशेस ऑफ जस्ट वन थिंग. ओके, तो बच्चा वी आर डूइंग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, अपन यहाँ पे करेंगे अभी शेप्स ऑफ सेल्स. सो डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस. तो अलग अलग सेल्स के भाई साहब क्या हो जाएंगे, अलग अलग शेप्स हो जाएंगे विच विल डिपेंड ऑन देयर फंक्शंस. लाइक अगर आप देखोगे कॉलमनर शेप, ठीक है, तो शेप लाइक कॉलम्स. हमारे स्किन में जो सेल्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज एपिथेलियल सेल्स और ये कॉलम्स की तरह होते हैं, जैसे बीम्स और कॉलम्स होते हैं ना ऐसे, ठीक है. सो दीज आर कॉलमनर शेप. तो आपका किस तरीके का शेप दिखेगा, देखो इस तरह के कॉलम शेप दिखेंगे, ठीक है. ये कॉलमनर शेप हो गया, दिस इज बेसिकली कॉलम इन शेप,
क्लियर है, समझ में आ रहा है? एपिथेलियल सेल्स आर एग्जांपल्स ऑफ कॉलमनर शेप सेल्स. व्हाट एल्स डू वी हैव? सर्कुलर बाइकॉन्केव. तो आपका सर्कुलर तो है लेकिन कैसा है देखो 3D में है, ऐसा बाइकॉन्केव मतलब एक बॉल है, एक ऐसा रोटी है, रोटी रोटी बेलने से पहले कैसा रहता है? मोटा सा, जो उसको क्या बोलते हैं? हाँ आटा बोलते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? हाँ डव. चलिए भाई साहब, अंग्रेज है ये भाई साहब, ठीक है. तो ये डव होता है. अगर डव में थोड़ा सा तुमने पिचका दिया तो इसको अपन बोलेंगे सर्कुलर बाइकॉन्केव. वो जो डव मतलब रोटी बनने के पहले गोला सा है, उसको तुमने से ऐसा पिचका दिया तो ये कैसा हो गया? सर्कुलर बाइकॉन्केव. इसको अपन बोलेंगे सर्कुलर बाइकॉन्केव. हमारे बॉडी में जो आरबीसी के सेल्स होते हैं, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, इनका फंक्शन क्या होता है? किसी को मालूम है? व्हाट इज इट? नहीं नहीं नहीं, फाइट नहीं करते. हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, क्योंकि इनमें होता है हेमोग्लोबिन, ठीक है. सो ये होता है आपका आरबीसी. आरबीसी मतलब हो गया आपके रेड ब्लड सेल्स. आपके ब्लड में बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं. एक होता है रेड ब्लड सेल्स, एक होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, एक होता है आपका प्लेटलेट्स, ठीक है, दी प्लाज्मा. तो आपका ये सर्कुलर बाइकॉन्केव इस तरीके का दिखेगा. देखो रोटी है, आटा है, इसको थोड़ा सा पिचका दिया आपने तो इस तरीके का सर्कुलर बाइकॉन्केव सेल बन गया, ठीक है. ओके. स्पिंडल शेप आपने लटाई देखी रहेगी, ठीक है, या आपने ऐसा देखो, ऐसा दिखा रहेगा जिसमें फटाफट से हम लपेटते हैं किसको, मतलब कोई भी स्ट्रिंग रहेगा तो उसको लपेटते हैं, तो स्पिंडल शेप सेल्स. तो हमारे बॉडी में जो आपके मसल के सेल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ठीक है. दे आर लाइक दिस. आपके मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप सेल्स, ठीक है. तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे ऐसा स्पिंडल होता है, देखो लटाई मतलब ऐसे लपेटने के लिए, ठीक है. तो इसी तरह से हमारे जो मसल सेल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? स्मूथ मसल सेल्स. तो ऐसे देखो स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ठीक है. अलग अलग सेल्स के अलग अलग शेप्स एंड साइजेस हैं. देन वी हैव ओवल सेल्स विच इज बेसिकली ओवम और एग सेल. तो ये हो गया आपका ओवल सेल. इररेगुलर दैट इज अमोइबा. देखो अमोइबा एक सेल हो गया विच इज इररेगुलर. सर्कुलर फैट सेल्स हैं, देखो हमारे बॉडी के अंदर फैट सेल्स. ब्रांच्ड हमारा नर्व सेल है, ठीक है. एक चीज याद रखना, नर्व सेल इज द ओनली सेल, ये कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है. हमारे सारे बॉडी में जितने सेल्स हैं वो रिप्लेस होते हैं, ठीक है. ऑल सेल्स इन आवर बॉडी डीजेनरेट, ठीक है. सारे सेल्स हमारे बॉडी में डीजेनरेट होते हैं एंड आर रिप्लेस्ड. ऑल सेल्स इन आवर बॉडी डीजेनरेट एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स, ठीक है. सारे सेल्स जो है हमारे बॉडी में वो डीजेनरेट होते हैं और नए सेल से रिप्लेस होते हैं. इकलौता नर्व सेल ऐसा है, एक्सेप्ट नर्व सेल, ठीक है. ये नर्व सेल एक्सेप्ट ये नर्व सेल कभी डीजेनरेट नहीं होता है, मतलब बचपन से लेकर मतलब इंसान के डेथ तक ये रहेगा, वैसा ही रहेगा, एक्सेप्ट नर्व सेल. बाकी सारे सेल्स आपके बॉडी में चेंज हो चुके होंगे, ठीक है. दे विल हैव देयर ओन साइकिल्स. जैसे आपका आरबीसी देखोगे तो उसका लाइफ स्पैन कितना है? 180 डेज है अप्रोक्सीमेटली, 3 महीने तक रहता है, उसके बाद वो डीजेनरेट कर जाता है, ठीक है. सो ऑल द सेल्स दैट आर देयर इन आवर बॉडी विल डीजेनरेट एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यूअर वर्जन ऑफ सेल्स एक्सेप्ट फॉर नर्व सेल. ये भाई साहब इंसान के जन्म से लेकर उसके एंड तक ये वैसा का वैसा ही रहेगा. इलोंगेट होगा, आपके बॉडी का हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा, आपके बॉडी का ग्रोथ जैसे जैसे होगा वो इलोंगेट होगा, लेकिन रिप्लेस नहीं होगा. इट इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज, ठीक है. तो ये आपका ब्रांच सेल का एग्जांपल हो गया. स्पाइरल सेल्स, ठीक है, स्प्रिंग शेप्ड है भाई साहब. स्पाइलियम बैक्टीरिया, देखो इस तरीके का एक बैक्टीरिया आता है, स्पाइरिलियम बैक्टीरिया, एंड दैट इज व्हाट टाइप ऑफ शेप? इट इज हैविंग स्पाइरल शेप, ठीक है. तो यहां पे हमने क्या देखा भाई साहब? रेक्टेंगुलर स्पेल्स ऑफ स्पाइरोगायरा. स्पेल्स ऑफ स्पाइरोगायरा जो है वो आपके रेक्टेंगुलर है, ठीक है. इस तरीके के रेक्टेंगुलर शेप सेल्स हो गए ये, ठीक है. ओके ओके. रॉड शेप सेल्स दैट इज बैसिलियस बैक्टीरिया. तो यहां पे देखो ऐसे रॉड शेप सेल्स हैं ये. These are basically rod shaped cells and these are known as bacillus bacteria, ठीक है. Are we clear on this one, people? ठीक है. Okay, okay, okay. So the shape and size of the cells are related to the specific function they perform. ज्यादा करके आप देखोगे जो भी आपका शेप और साइज होता है वो डिपेंड करता है कि क्या फंक्शन है जिसको परफॉर्म करना है. What is the type of function they have that they need to perform. So the shape and size of the cells are related to the specific function that they need to perform, ठीक है. सो अभी देखते हैं अपन सेल स्ट्रक्चर. अ सेल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. क्या क्या है मतलब सेल के अंदर क्या क्या है बच्चा पार्टी, ठीक है. दैट इज समथिंग दैट वी विल सी इन दिस मॉड्यूल कि आपके एक सेल के अंदर इसको कम करना पड़ेगा. टू 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 टू.
क्या हो रहा भाई? ओके, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस है। लाइक अगर आप देखो, अरे यार ये क्या हो गया, व्हाट ऑन अर्थ इज हैपनिंग, व्हाई इज इट गेटिंग रिपीटेड, ये क्या हो रहा है भाई साहब? क्यों नहीं हो रही है ये, क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, सेल स्ट्रक्चर। सो सेल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। क्या क्या है भाई साहब आपका? तो ये देखो एक सेल है, दिस इज बेसिकली अ सेल, ठीक है। और इसमें क्या क्या है देखो, पहला आता है आपका सेल वॉल। ये सेल वॉल जो है, ठीक है बच्चा पार्टी बहुत ध्यान दीजिएगा, ये सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में फाउंड होता है, ठीक है। इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल्स, ठीक है। तो सेल वॉल बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, ठीक है। आपका सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में आपका फाउंड होता है। ओके ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके एनिमल सेल में भी होता है, इट इज देयर इन एनिमल सेल एंड इट इज देयर इन प्लांट सेल एज वेल, ठीक है। तो ये दोनों में भी होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सेल ऑर्गेनल्स, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी देम वन बाय वन, ठीक है। तो आपका पहला आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आपके बिल्डिंग में जो वॉचमैन है उसका जो फंक्शन है ना, वही फंक्शन आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ठीक है। बिल्डिंग का वॉचमैन सिर्फ बिल्डिंग के लोगों को ही अलाउ करेगा, या तो बाहर से अगर कोई अमेज़न वगैरह से आया है तो उनको अलाउ करेगा, या तो अगर किसी से परमिशन लेना पड़े तो फोन करके परमिशन लेगा फिर जाकर छोड़ेगा, है ना। तो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी यही काम करता है। इट विल अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल्स ओनली। इट विल अलाउ द एंट्री ऑफ, किसका एंट्री? ऑफ एसेंशियल थिंग्स। इट विल अलाउ द एंट्री ऑफ एसेंशियल थिंग्स एंड एग्जिट ऑफ वेस्टेजेस। तो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बाहर निकालेगा, ठीक है। एंट्री ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड एग्जिट ऑफ ऑल वेस्ट, दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो समझते हैं भाई साहब, यह जो आपका मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल को सराउंड करता हुआ जो मेम्ब्रेन है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल, ठीक है। इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो पहली बात तो क्या है भाई साहब, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये सेपरेट आउट कर रहा है। इट इज सेपरेटिंग व्हाट? द कंटेंट्स ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर कंटेंट्स हैं इनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये सेपरेट आउट करता है। तुमको नींद आ रही है बहुत जोर से, ठीक है। ओके, सो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। दिस इज बेसिकली योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज फॉर्मिंग अ बाउंड्री। जैसे आपके बिल्डिंग का एक बाउंड्री वॉल है, उसके बाद दूसरा बिल्डिंग है या आपको दूसरी जमीन है ना, तो वहां तक आपके बिल्डिंग का एरिया है। क्या समझ में आ रहा है? तो सेल मेम्ब्रेन का भी एक बाउंड्री वॉल होता है, उसके बाद बाहरी चीजें दिखेंगी, ठीक है। सो इट इज अ थिन आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। इट सेपरेट्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज बेसिकली व्हाट? द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये आपका हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ये हो गया आपके क्या? कंटेंट्स ऑफ द सेल। दीज आर बेसिकली कंटेंट्स ऑफ द सेल, ठीक है। ओके। The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins. तो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किन चीजों से बना हुआ है? लिपिड्स और प्रोटीन से। ये एक फ्लेक्सिबल चीज है और ये लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो ये आपको देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन चीजों से बना हुआ है भाई साहब? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका बना हुआ है लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। Are we clear? Clear on this one, people? Okay. So lipids and proteins are what we have in plasma membrane. Okay. So आपका the plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. तो entry और exit दोनों भी कौन allow करता है? Plasma membrane.
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज एंट्री ऑफ सब मटेरियल्स एज वेल एज एग्जिट। एंट्री जो एसेंशियल है सेल के लिए, एंट्री किसको देगी भाई साहब, जो सेल के फंक्शन के लिए एसेंशियल है, जो इंपॉर्टेंट है ना। और एग्जिट किसको देगी भाई साहब, जो नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है या जो वेस्ट है, जो वेस्ट है, ठीक है, उसको एग्जिट देना है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। तो अदर मटेरियल्स का मूवमेंट भी ये प्रिवेंट करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द movement of some other materials. Therefore, the plasma membrane is called a selectively permeable membrane. इसको अपन क्या बोलेंगे, SPM, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या है, वो किन्हीं चीजों को अंदर जाने देगा और किन्हीं चीजों को बाहर जाने देगा। जैसे आपका बिल्डिंग का जो वॉचमैन है, ठीक है, वो भाई साहब जो बिल्डिंग में रहते हैं या जिनको बिल्डिंग से काम है उनको ही अंदर जाने देगा, आलतू फालतू किसी को जाने नहीं देगा। और इसी तरह से कोई छोटा बच्चा अगर बाहर निकल रहा है तो उसको भी वो अवॉइड करवाएगा, है ना। तो बिल्डिंग के जो मतलब छोटे छोटे बच्चे, उनकी भी जिम्मेदारी वो ले लेगा, भाई साहब बाहर नहीं जाने देगा। तो जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो ये भी देखता है कि सेल के अंदर ओनली दोज थिंग्स एंटर विच आर रिक्वायर्ड और आर एसेंशियल फॉर द सेल, एंड सेल के बाहर वही चीज जाए जो सेल से रिक्वायर्ड नहीं है। So they would allow the exit of only those things which are not required by the cell. ठीक है, क्लियर है? Okay, so that is called selectively permeable membrane. How does the movement of substance takes place inside and outside the cell? ठीक है, for example, when the concentration of carbon dioxide inside the cell increases, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल के अंदर जब बढ़ने लगता है, the carbon dioxide moves out of the cell by diffusion. तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट विल मूव आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, इट विल मूव आउट ऑफ द सेल, इट विल मूव आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन। सो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेल इंक्रीजेस, द कार्बन डाइऑक्साइड विल बेसिकली मूव आउट बाय डिफ्यूजन। क्लियर है? ओके, सो आपका यहाँ पे फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हमेशा आपका क्या होता है मूवमेंट, द मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आपका जो भी फ्लूइड्स होता है ना बच्चा पार्टी, फ्लूइड्स मतलब गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है, फ्लूइड्स मतलब गैसेस एंड लिक्विड्स, देयर मूवमेंट इज हाउ, देयर मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जहां पे वो ज्यादा तादाद में है वहां से मूव करके वो कहां जाते हैं, जहां पे वो कम तादाद में है। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन मींस दे आर प्रेजेंट इन हायर नंबर्स, दे विल मेक अ मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर प्रेजेंस इन हायर नंबर्स टू अ रीजन ऑफ देयर प्रेजेंस इन लोअर नंबर्स, फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो ये हो गया भाई साहब आपका, दिस इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। जब देखो यहाँ पे अभी कौन ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। ऑक्सीजन 1 2 3, बाहर देखो 1 2 3 4, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा हुआ तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एंटर करेगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि बाहर नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट करेगा। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ये जो आपका मेम्ब्रेन है ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन क्या लिखते हैं, देखो SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो लेट्स से यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन में, सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बेसिकली मूव आउट, ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट। क्यों? क्योंकि फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और क्या, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा है तो ऑक्सीजन विल मूव इन, दैट इज इट विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आर वी क्लियर? और इसी मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, क्लियर है? इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, डिफ्यूजन। ठीक है, ओके, सो आपका देखो यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, कार्बन डाइऑक्साइड हैज मूव्ड आउट बिकॉज इट वाज इन हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एंड व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन, सिमिलरली व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब 3 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, बाहर 4, तो ये अंडर करेंगे। ठीक है, देन ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, बहुत जोर नींद आ रही है, बहुत जोर। ठीक है, सो ऑक्सीजन विल बेसिकली व्हाट, इट विल मूव इन।
क्लियर है? सो ये जो मूवमेंट होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन and this is applicable to fluids, that is gases, and it is applicable in such a way that it will move from a region of its higher concentration to a region of its lower concentration through a semi permeable membrane. या इसको अपन देखो, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, या इसको अपन क्या बोलेंगे, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सिलेक्ट करेगा अंदर किसको जाना है और बाहर किसको जाना है। It is basically a selectively permeable membrane. It's going to choose what to allow in and what to exit. ठीक है? It is going to basically choose selectively permeable membrane. Okay, okay, okay. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो आपका देखो, क्या वाटर सेल का रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल है भाई साहब। तो सेल के अंदर जो वाटर अलाउ करता है वो कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बॉर्डर है बेसिकली, सेल को बाहर के कंपोनेंट से या बाहर के एनवायरनमेंट से ये सेपरेट आउट करता है। सो इट विल अलाउ वाटर टू एंटर इन एंड विल अलाउ द वेस्टेज प्रोडक्ट्स टू गो आउट। ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कीप्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल। लेट अस सी हाउ एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ठीक है? तो समझ लो भाई साहब, यहाँ पे व्हेन द सेल इज बेसिकली प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। अभी बच्चा पार्टी, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज एन आइसोटोनिक सोल्यूशन? आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब वो सोल्यूशन, ठीक है, जिसके साथ कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। मतलब देखो, अगर कोई सेल है और उसके बाहर आपने आइसोटोनिक सोल्यूशन रखा है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा। मतलब ना ही अंदर से चीजें बाहर जाएंगी और ना ही बाहर से चीजें अंदर जाएंगी। ये मूवमेंट कब होता है? मूवमेंट तब होता है जब आपका भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस हो। ठीक है? सो इफ यू हैव प्लेस्ड द सेल इन अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन? ठीक है? आइसोटोनिक मींस द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज दैट ऑफ द सेल। तो जो मीडियम सराउंड कर रहा है सेल को, इट हैज द सेम कॉन्सेंट्रेशन एज दैट ऑफ द सेल। ठीक है? ओके, सो समझ लो भाई साहब, आपका ये सेल है। ठीक है? ये आपने सेल डाला है इसमें, तो यहाँ पे जितना कॉन्सेंट्रेशन इस सेल के अंदर है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन इस सेल के बाहर है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। व्हेन अ सेल इज इन एन आइसोटोनिक मीडियम, देयर वुड बी नो मूवमेंट फ्रॉम ईदर इनसाइड द सेल टू आउटसाइड और आउटसाइड द सेल टू इनसाइड। नो मूवमेंट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है? ओके, सो in this case there is neither entry of water in the cell nor exit of water from the cell। तो ना ही वाटर एंटर करेगा और ना ही वाटर एग्जिट करेगा। ठीक है? ओके, सो नीदर वाटर एंटर्स नीदर वाटर एग्जिट्स। ठीक है? तो ना ही एंटर होगा और ना ही एग्जिट होगा। नो एंट्री, नो एग्जिट, नो एक्सचेंज। कब होगा ये? जब आपने सेल को किस में रखा है बच्चा बड़ी? आइसोटोनिक सोल्यूशन में। आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेल का जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर, वो बाहर के साथ मैच कर रहा है। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल is equal to the concentration of water outside the cell, because of which there is going to be no movement। ठीक है? सो हम यहाँ पे आइसोटोनिक मतलब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? concentration of water inside the cell, concentration of water inside the cell is going to be equal to the concentration of water outside the cell, concentration of water outside the cell। इसीलिए there will be no movement, एब्सोल्युटली नो मूवमेंट ऑफ वाटर। यहाँ पे भाई साहब आपका वाटर का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। सो द सेल रिमेन्स फ्लैसिड। फ्लैसिड मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है? नॉट फर्म और हार्ड। ठीक है? नाउ व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो जाएगा बोलो? मींस मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो आपके सेल के बाहर जो मीडियम है, नींद आ रही है तेरे को, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाइयर है, तो क्या हो जाएगा? हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। तो मीडियम का हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा? मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर देन
सेल का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है. मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन दैट ऑफ द सेल. सो व्हाट विल हैपन, these water molecules will move inside. ये water molecules will move inside, ठीक है. They are going to move inside. Okay, that is outside the solution is very dilute. Outside आपका solution बहुत dilute है. In this case water moves inside the cell. तो water inserts inside the cell. Water भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, inside हो जाएगा. कभी आपने जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन लिया है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब मीडियम का जो सोल्यूशन है that has got higher concentration than cell का अंदर का solution, ठीक है. So water will keep on moving inside. Are we clear to this one people? तो आपका क्या हो जाएगा, जब water अंदर आता जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये cell क्या होने लगेगा, swell up होने लगेगा. It will start swelling up. It swells up, ठीक है, and swells up and up. So the cell becomes turgid, मतलब ठोस हो जाता है ये, ठीक है. It becomes turgid. The cell becomes turgid. क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, एकदम ठोस हो जाए. जैसे आपने बादाम को कभी भिगो के रखा है तो आप देखोगे बादाम एकदम ठोस हो जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भर गया है ना इसमें. अभी इसके बाद तो ये फूट ही जाएगा, ठीक है. इट बिकम्स टर्जिड और स्वोलन बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, टर्जिड और स्वोलन. ओके, व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो मीडियम सॉल्यूशन का है, मीडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मीडियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेसर देन सेल का अंदर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. तो यहाँ पे सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन दैट ऑफ द सेल, ठीक है. तो आपका दैट इज आउटसाइड, इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड. इन दिस केस वाटर मूव्स आउटसाइड द सेल. तो वाटर भाई साहब क्या हो जाएगा, इट विल मूव आउटसाइड. दिस इज गोइंग टू मूव आउटसाइड. क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो वाटर कम्स आउटसाइड द सेल. तो ये सेल क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, है ना. तो ये पिछला वाला तो ठोस हो गया था भर भर के, ये क्या हो जाएगा, लुष्ट पुष्ट हो जाएगा, ठीक है. सो इट विल बिकम व्हाट पीपल, इट श्रिंक्स. इसको अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस. सो व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस पीपल? द मूविंग आउट ऑफ वाटर व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस, ठीक है. सेल जो है तो आपका बेसिकली इट विल टर्न. तो ये आपका देखो सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर का वाटर कंटेंट भाई साहब बाहर निकल गया, ठीक है. सो सेल बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड. ये सेल आपका क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड. मतलब सेल क्या हो रहा है, इट हैज बेसिकली श्रिंक हो गया है, सेल श्रिंक हो गया या प्लाज्मोलाइज्ड बोल सकते हैं इसको, ठीक है. ओके, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में, तो हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा, सेल स्वेल अप होगा, और हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, ठीक है. तो हाइपरटोनिक में अंदर जाएंगे, सेल बिकम्स टर्जिड, ठीक है, सेल आपका टर्जिड हो जाएगा. हियर वाटर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो सेल बिकम्स टर्जिड. हियर वाटर मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है. सो सेल हियर बिकम्स व्हाट, बच्चा पार्टी, द सेल विल बिकम, हियर वाटर मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. Here the water moves from outside to inside. Here the water moves from inside to outside. So what will happen? So we see that water always moves from a region of higher concentration to a region of lower concentration. In fact, सारे fluids, not only water but all fluids, they generally move from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration. Movement of water takes place through plasma membrane. ये जो movement of water है, ये किससे होता है, plasma membrane से. और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस. सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस. Okay, so the passage of water from a region of higher water concentration through a selectively permeable membrane, ठीक है, to a region of lower water concentration is known as osmosis. तो यहाँ पे water move हो रहा है कहाँ से बोलो, water from region of higher concentration, region of higher concentration move हो रहा है किधर, to a region of lower concentration, to a region of lower concentration. और बीच में क्या है बोलो, selectively permeable membrane. इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, osmosis. This process is known as osmosis. So the movement of water molecules from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration through a selectively permeable membrane, this process is known as osmosis. ठीक,
सो इट इज अ प्योर मैकेनिकल प्रोसेस, एक भाई साहब पूरा मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चा पार्टी, ठीक है। इट डजंट रिक्वायर एनी फॉर्मेट ऑफ एनर्जी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है।